backend team to kindly. Okay, we can formally start the session. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तदेव शुक्रदब्रह्मा तदब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. So, good evening, everyone. I am Dhairya M. Thakkar, a proud part of Wings of Vikasa, and it is my absolute pleasure and honor to welcome everybody here to this knowledge-driven evening under the Gyan Yagna series, a platform where learning knows no limits. Today's seminar is titled Practical Application of Finding the Right Stocks, a topic that bridges the theoretical finance and real-world investing, something every CA student today is curious about, but few truly understand. And that's exactly what we aim to simplify for all the students today. This session is being brought to you by Vikasa WIRC of ICAI, and we are thrilled to take you along on this beautiful journey that turns market curiosity into your meaningful insights. To officially commence the evening, I would request CA Jitendra Saglani sir, Vikasa chairman, to deliver his welcome address. Is sir in Madhur? Actually, Jitendra sir is out of coverage, so we can proceed further with Ketan sir. Fair enough. So I would request our beloved leader Ketan Sayya sir, chairman of WIRC, to provide us with the welcome. Thank you so much, Dhairya, for a wonderful MOC. Vice Chairman, West India Regional Council Student Association, Parth, our solid MCM, Madhur, Sakshi, learned speaker, Abhinav, and dear student. It's a pleasure addressing all of you in this series of Gyan Yagna on capital market. I think very interesting topic the team has selected today about selecting the right stock. And there have been history, stock like Infi or HDFC Bank, where people have invested 1,000 rupees and have become crores of rupees. N number of such stocks are there. And I think in future also, and we must know that, how do we select such stock where it can be a multi-bagger, and just by investing 1,000 or 5,000 or 10,000, in few years time, we can make crores of rupees by doing a right investment, right selecting of right stock. And I'm sure the yesterday's early investing session, which Abhinav had, was again a fantastic session, and which mention about how do we invest and what is the advantage of early investing. And at early age, if we are able to find out such right stock, I think that will be an added advantage, and such stock can change people's life if we invest rightly in right stock. With this, let me thank the team Vikasa. I think Chairman Vikasa has also joined. So let me thank him, a team wonderfully led by Jitendra Saglani ji from Nagpur, Chairman Vikasa. Jitendra bhai, since you were not there, I took that chance of addressing before you. So thank you so much, the entire team Vikasa. And let me request, since Jitendra bhai has joined, let me request him to address all the students. Over to you, Jitendra bhai.
Yeah. So we are not able to hear Traffic as you. well. Maybe your voice is breaking. Maybe Is you it try switching off your video. okay? Is it better now? Yes, yes, yes. Is the voice? Yeah. So little late. I got stuck somewhere, and that is the reason I couldn't join earlier. But friends, let me tell you this would be another eye-opening session for you all, wherein see Abhinav Sharma is going to talk today, and I think he's definitely going to cover not just early investing, which is already covered, but technical part. And today is his favorite topic because he has been into technical analysis for a very long time now, and had been doing wonders when it comes to say stock picking and all. So today the journey would be very interesting when it comes to technical analysis, and I look forward to understand lot many things while staying say connected in the session. So welcome Abhinav bhai for a wonderful session. And today being day 27, friends, a couple of more sessions to go in Gnan Yagna and that Twin Capital Market series. So looking forward to you all in all the sessions that are happening. And tomorrow we'll be actually having a session which is on which is actually Articleship Launchpad 2, wherein we'll be covering the GDPI and the communication skills part, which is a physical one happening at 10 a.m. at BKC ICI Tower. And looking forward to students who are wishing to join for that session as well. So let's have a meaningful interaction tomorrow. And with these words, I once again thank Abhinav bhai and entire team, along with recognizing presence of CA Ketan Sayya sir. Thank you so much, sir, for doing the honors when I was not there. And thanks for supporting in all the initiatives of Vikasa. Over to you. Over to MOCs. Yeah, before the MOC takes over, since Jitendra sir mentioned about tomorrow's program, the people who are seeking the articleship tomorrow, almost 14 firms are here where we are doing, article placement program. So you can visit these 14 firms and, get registered if you are looking for articleship. And if any of your friends are looking for articleship, tell them also to be registered and come and give an interview in almost all 14 firms. So please spread this message to the friends who are looking for the good firm for the articleship. Thank you. Over to you, Dhairya. Thank you, Jitendra sir, and thank you, Ketan sir, for such a warm welcome. Up next, I would be requesting Mr. Parth Thakkar, Vice Chairman of Vikasa, to share a warm address to the students. Thank you so much, Dhirya. As our dynamic chairman and both the dynamic chairmen, C. Ketan Sayya sir and Jitendra sir has addressed. Welcome all the students for this wonderful Gyan Yagna series. And thank you for attending such more programs. Thank you so much. Thank you, Parth, for always leading from the front. Up next, I would be requesting my mate Sakshi Oja for introducing Man of the Day, man who would be teaching us how to find right stocks at the right time. With that being said, I would request Sakshi to take over the dais. Good evening to the respected dignitaries, our esteemed speaker, and my dear friends. I am Sakshi Oja from Wings of Vikasa, and it gives me great pleasure to introduce the speaker for today's engaging session, C. Abhinav Sharma sir. A dynamic chartered accountant and partner at RB Sharma and Company, Abhinav sir is known for his deep expertise in technical analysis, specializing in Heikin-Ashi candlestick patterns and open interest. He is an NISM certified technical analyst and has contributed significantly to the profession through various roles, including as a member of the WIDC Committee on Financial Markets and Investor Protection. A passionate educator and regular speaker at ICI, Vikasa, and several other professional forums, he has conducted impactful sessions at national conferences across cities like Indore, Chhatrapati Shambhajinagar, and Ahilyanagar. A city topper in CA final, Abhinav Sir's achievements extend far beyond academics. A committed sportsperson, he has captained the three-time CAPL champion team from Chhatrapati Shambhajinagar and has been a key member of the five-time champion cricket team from Nagpur. He also won the Auditor Badminton Championship 2024 in Chhatrapati Shambhajinagar.
In recognition of his intellectual prowess, he was awarded Best Paper Presenter at the National CA Students' Conference in 2017. A former treasurer of Vikasa, Abhinav sir is a remarkable blend of knowledge, leadership, and energy, and we are truly honored to have him with us today. Let's put our hands together and extend a warm welcome to C. Abhinav Sharma sir for what promises to be a power packed and insightful session ahead. Thank you so much, Sakshi, for the lovely introduction. Thank you, Vikasa, Jitendra sir, Ketan sir, for having me here. So, MOC, can I begin the session? Yes, sir. Purely over to you. Okay. So, I'll just share my screen. Uh, Let me know if my screen is visible. And good evening to one and all present here. No, sir. We can only see a blank. Yeah, now it is visible. Yeah, is it visible now? Yeah, okay. So, I think we have a good crowd here. And my topic is practically finding right stocks using technical analysis. और ये जो सेशन हम करने वाले हैं ये बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन रहेगा. सो आई वुड लाइक द ऑडियंस टू बी वेरी वेरी इंटरैक्टिव इन द चैट बॉक्स. आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस एंड मुझे उसके आंसर्स लगेंगे आपके चैट बॉक्स के अंदर. सो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ बाय गिविंग यू टू क्वेश्चंस और टू सिचुएशंस और मुझे ये बताना कि कौन से सिचुएशन से आप रिलेट कर सकते हो एंड आई नीड दोज आंसर्स इन द चैट बॉक्स. सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन दैट आई एम शोइंग यू ऑल. ये सिचुएशन कितने लोगों के साथ होती है कि जब हम ट्रेड करने जाते हैं या इन्वेस्ट करने जाते हैं, जब हम उस स्टॉक में एंट्री लेते हैं वो वहीं से नीचे गिरता है और जब हम वहाँ से एग्जिट लेते हैं वहीं से ऊपर जाना शुरू होता है. So how many people can relate to this situation? Please let me know. And I'll tell you, मैं भी ऐसा पर्सन हूँ जिसके साथ में ये सिचुएशन बहुत बार हुई है. दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस्ड. एंड नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड सिचुएशन. इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है. दिस वन. ये सिचुएशन कितने लोगों के साथ हुई है? When we try to invest on friends advice or anyone's advice, ये सिचुएशन कितने लोगों के साथ हुई है? Is my screen moving or visible? क्या कुछ प्रॉब्लम आया है? Or shall I place the situation again? Just a moment. I have played it again. Okay, just a moment. I'll just share the screen again. Is it visible now?
I think there seems to be some internet issue. Just a moment. Yes, इंटरनेट में थोड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है. I just love the way that you are interacting. लो सर, अपना कैमरा बंद करके फिर करिए ना सर. Yes, so now is it visible? Yes, sir, it's visible. Yes, okay. So now I'll just quickly share the second situation with all of you. And this one. I think the screen should be moving by now. Okay, just let me share some next slides. Just let me know if the slides are moving. I think it is moving now. Yes, okay. So यहाँ पे हमने दो सिचुएशंस देखी. सबसे पहले तो ये था कि जब हम कोई स्टॉक में एंट्री लेते थे तभी वो स्टॉक वहां से पलट जाता था, या जब हम स्टॉप लॉस लगाते थे तो बस स्टॉप लॉस के नीचे जाके वहां से ऊपर चला जाता था. एंड द सेकेंड वन वाज जब हम कोई फ्रेंड के एडवाइस से ट्रेड लेते थे या किसी और के एडवाइस से ट्रेड लेते थे. सो कब एंट्री लेना चाहिए वो हमें समझ में नहीं आया. जैसे हमने देखा कि जब हमने एंट्री ली वो स्टॉक वहीं से घुस गया और वहां से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया. So that is why I have not developed this system. There is already a system which is called as Heikin-Ashi candlestick pattern. नाम पे मत जाओ, नाम थोड़ा confusing लगेगा. It is a Japanese term. इसको हम सिंपली आगे HK बोल के फॉलो करेंगे. सो ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए काम में आती है और जिसके लिए मैं एक्चुअल मेरे ट्रेड्स भी जो है वो मैं इसी पे लेता हूँ. जैसे तन्मय ने, सार्थक ने, यहाँ पे हमने देखा कि आपको कैंडल क्या होती है, ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है, कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता रहेगी. सो अब हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे. सो इसमें हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन, देन Heikin-Ashi कैंडलस्टिक पैटर्न होती क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल कैंडल. देन विल डिस्कस हाउ टू बाय, हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस, the most important thing, how to trail stop loss,
और उसके बाद में स्टॉप लॉस ट्रेल होने के बाद में एग्जिट स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे। देन फिर हम एग्जांपल्स भी देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड के, कि आप पूछोगे कि सर ठीक है, अभी तो आपने बताया, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा, बट प्रैक्टिकली ये वर्क कैसे करता है। देन जैसे केतन सर ने भी बोला कि हाउ टू फाइंड मल्टीबैगर स्टॉक्स यूजिंग दिस। सो कौन से टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड करना चाहिए फॉर एफएनओ ऑल्सो, फॉर इन्वेस्टिंग ऑल्सो, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अगर सपोज मैं एचके कैंडल का एक फॉर्मूला बताऊँ, तो देर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला विच एचके कैंडल फॉलो, कि नॉर्मल कैंडल से थोड़ा सा अलग होता है। आप अगर ओपन देखोगे तो एचके हाइक एंड ऐशी का मतलब होता है एवरेज बार, तो वो पिछले कैंडल का एवरेज लेगा। सो दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल फॉर्मूला फॉर एचके कैंडल, नो नीड टू लर्न दिस और एनीथिंग, बट ये जस्ट नॉर्मल और एचके कैंडल में क्या डिफरेंस होता है। बिकॉज जब आप एक नॉर्मल कैंडल देखोगे और आप एचके की कैंडल देखोगे, तो उसके ओपन और क्लोज इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। हाई और लो सेम रहेंगे, बट ओपन और क्लोज में फर्क दिखेगा, इसीलिए ये जस्ट एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला है। मूविंग ऑन, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन वेयर आई वांट एवरीवन्स अटेंशन। और इसमें अगर कोई भी डाउट आपको आता है एनी टाइम ड्यूरिंग दिस सेशन, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द चैट बॉट, तब के तभी पूछ लो, बिकॉज जब हम आगे बढ़ेंगे तो वापस पीछे आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो जब जब डाउट आता रहे, प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स, आई हैव चैट बॉक्स ओपन हियर, सो मैं आपके क्वेश्चन देख सकता हूँ। ओके, अब बाय पैटर्न कैसे होता है, यहाँ पे एक कैंडल हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये कैंडल का कलर मैंने पर्पसफुली व्हाइट कलर का रखा है। वाई? बिकॉज जो व्हाइट कलर का कैंडल है, इसका मतलब ये है कि कैंडल का कलर क्या है, ये रेड हो या ग्रीन हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। द फर्स्ट कैंडल जो हमारी रहेगी, वहां पे हमें बॉडी रहनी चाहिए और वहां पे हमें विक मिलना चाहिए। विक मतलब, आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज अ विक। अ विक मींस दिस, दिस इज अ विक। इट इज ऑल्सो नोन एज अ शैडो ऑफ द कैंडल, या अगर सपोज हम नॉर्मल इसमें देखें तो वी कैन से दैट की एक जैसे आम्ही मराठीमध्ये म्हणतात ना, कांडिया व्हायला पाहिजे, तो कांडी मिलनी चाहिए हमको। सो फर्स्ट कैंडल शुड बी दैट। Okay, now we have a second candle which is obviously it should be a green candle because हम एक बाय पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये रूल ऐसा बोलता है कि यहाँ पे हमें विक नहीं मिलना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी विक हियर। देयर कैन बी अ विक हियर ऑन द अपर साइड, बट देयर शुड नॉट बी एनी लोअर विक। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ओपन और लो दोनों सेम है, इसीलिए विक नहीं बन रहा है। आई होप यू आर ऑल गेटिंग दिस टेक्निकल पॉइंट। बिकॉज विक नहीं है, इसका मतलब क्या है, ओपन और लो दोनों सेम है, मतलब वहां से बाइंग आ रही है और स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसीलिए कैंडल में विक नहीं बन रही है। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू पॉइंट आउट एनी ऑफ द प्राइस पैटर्न जो भी आपने देखा है, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, कोई स्टार देखने की जरूरत नहीं है आपको, कोई पैटर्न्स देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट जहाँ पे मैं एक बाय पैटर्न बता रहा हूँ। इसमें बिल्कुल भी आपको देखने की जरूरत नहीं है कि ये हैमर बना रहा है, डोजी बना रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, कुछ भी नहीं, जस्ट प्लेन सिंपली आप ये समझो, ठीक है। सेकेंड कैंडल हो गई जहाँ पे हमें लोअर विक नहीं मिला। अब हम थर्ड कैंडल के ऊपर जाते हैं। थर्ड कैंडल भी शुड एग्जैक्टली बी सेम एज द सेकेंड कैंडल, ठीक है, जहाँ पे हमें लोअर विक नहीं मिलना चाहिए। What does this indicate? This indicates a continuous buying in that stock. Of course, हम बाय कब करेंगे? जब ऑलरेडी मोमेंटम आ रहा है, स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में जा रहा है, तभी हम एंटर करेंगे। जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तब हम उस स्टॉक में एंटर नहीं करेंगे। सो दिस इज द बाय पैटर्न। ओके, हमें सिर्फ 3 कैंडल पे फोकस करना है। फर्स्ट कैंडल जहाँ पे हमें लोअर विक मिलना चाहिए, सेकेंड कैंडल जहां पे लोअर विक नहीं मिलना चाहिए, थर्ड कैंडल जहां पे लोअर विक नहीं मिलना चाहिए।
सिंपली सेइंग दिस इज द बाय पैटर्न। अगर आपको ये पैटर्न कोई भी स्टॉक में दिखता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में दिखता है, be it future, be it option, be it commodity, be it crypto, be it anything, जहां पे ये पैटर्न बन रहा है, दिस पैटर्न इज अ बाय पैटर्न। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम बाय ऑर्डर कब प्लेस करेंगे, कहाँ प्लेस करेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। सो स्टॉप लॉस कहाँ होगा हमारा, ऑफ कोर्स जहां से हमारी पैटर्न की शुरुआत हुई है उसका लोएस्ट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर वी प्लेस आवर स्टॉप लॉस। जो टाइम फ्रेम है कि ये कौन से टाइम फ्रेम पे अप्लाई होना चाहिए, whether it should be bought on a closing basis or on week, so we'll cover this part later। and जो टाइम फ्रेम वाला पार्ट है, दिस इज रिगार्डिंग एनी टाइम फ्रेम। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, आप 30 मिनट्स पे करो, कैंडल इज अ कैंडल, ओके। कोई भी कैंडल रहेगी आपको ट्रेड करना है, भले ही वो मंथली कैंडल भी हो सकती है, वो वीकली कैंडल भी हो सकती है, 3 मंथली हो सकती है, 6 मंथली हो सकती है, ठीक है। सो वील कवर दैट पार्ट लेटर कि कौन से ट्रेडिंग के लिए कौन से टाइम फ्रेम इज द बेस्ट, विच टाइम फ्रेम आई यूज, इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा, विल कवर दैट पार्ट लेटर, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ हुआ और हमने बाय कहाँ पे किया, वी बॉट एट द थर्ड कैंडल, जहाँ पे हमारा कैंडल क्लोज हुआ। सो थ्योरेटिकली हम वो कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे, थ्योरेटिकली, टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो यहाँ पे एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ये बाय पैटर्न क्लियर होगा तभी आगे के कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। फिर हम जाएंगे ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस एंड देन एग्जिट स्ट्रेटेजी के ऊपर। सिंपल इनफ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जीरो नॉलेज ऑफ कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, हेड एंड शोल्डर है, ये है वो है, जीरो नॉइज, सिर्फ 3 कैंडल्स पे आपको फोकस करना है। I have got yes of only a few 3 to 4 people, so if more people can answer this, because we have almost around an audience of 80-85. Yes, okay, so बाय पैटर्न यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे भी जाएंगे कि ये बाय पैटर्न कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, प्रैक्टिकली ये काम करता है नहीं करता है, कैसे काम करता है। सो नाउ we'll go to the next part, which is trailing of stop loss and exit। तो ये हमारा बाय पैटर्न तो यहाँ पे हो गया, हमने बाय कर लिया, हमने स्टॉप लॉस लोएस्ट पॉइंट पे प्लेस कर दिया। नाउ विल गो अहेड, दिस इज द नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट, फिर यहाँ पे अगली कैंडल आई। अगेन मैं कलर इसका व्हाइट पर्पसफुली इसीलिए रख रहा हूँ बिकॉज द कलर ऑफ द कैंडल, जहाँ पे भी कलर व्हाइट है, द कलर ऑफ द कैंडल डज नॉट मैटर टू अस, ओके। देयर इज अ कैंडल जहाँ पे एक अपर विक भी आ गई, लोअर विक भी आ गई, ओके। सो देयर इज अ विक, मतलब a lower wick or a lower shadow, that is the main point which I want to highlight, okay। then what do we do, जहां पे भी हमें lower wick मिलेगा, as we move on to our trades, जहां पे भी हमें lower wick मिलेगा, that lowest point is our trailing stop loss for the next candle। this is very important part, please इसको बहुत ध्यान से समझना। जब भी हमें एक lower wick मिलेगा, that would be the trailing stop loss for the next candle। next candle कैसे, कि जब हम अब अगले कैंडल पे जाते हैं, नाउ सपोज ये हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर रहे हैं, राइट। सो 3 कैंडल्स मतलब 3 दिन हो गए, देन 4th कैंडल ग्रीन आई, 5th कैंडल जो है यहाँ पे हमारा एक वीक आ गया, 5th डे, 6th डे पे जो कैंडल बनी वो उसके ऊपर बनी। सो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो अभी 5th कैंडल पे प्लेस्ड है और 5th डे पे प्लेस्ड है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग डेली टाइम फ्रेम, और या 5th कैंडल भी अपन अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर से एक कैंडल बनी जहां पे फिर से एक लोअर विक हमें मिला। सो अब लोअर विक मिला, सो व्हाट डू, वी ट्रेल आवर एसेट टू दैट लोएस्ट पॉइंट, एंड देन उसके बाद हमें एक और एक कैंडल मिली जहां पे कैंडल ने जो प्रीवियस कैंडल का लो है वो ब्रीच कर दिया। सो व्हाट हैपेंड, दिस is our trailing stop loss hit and we exit that trade।
फिर से अगर मैं बताऊं आपको, दिस पहला जो हमारा स्टॉप लॉस था, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था, यहाँ पे प्लेस था, दिस वाज आवर स्टॉप लॉस ओरिजिनल। देन हमारा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे ट्रेल हुआ, देन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हुआ, और अल्टीमेटली जब प्राइस प्रीवियस कैंडल के नीचे गया हमने एग्जिट कर लिया। क्लियर टू एवरीवन? Yes, so now we can take up some questions. The first candle should have 2 wicks or even 1 wick can validate rule to enter. Okay, very good question. Yes. What do we need here? Buy pattern में अगर आपने देखा होगा, हमें lower wick चाहिए for stop loss. So जो first candle है, first candle का upper wick is not very important to us. This wick is not at all important to us. Why? Because buy trade में हम high पे trade कर ही नहीं रहे, हम low का stop loss लगा रहे हैं. This is not needed to us, but this, yes, definitely. This is needed to us when we are in the buy trade. Okay, so even if it is a lower wick and there is no upper wick, that is fine. Do we need to wait for closing of candle? If you are, this is also a good question जो मेरे बहुत time हमेशा सुनने मिलता है, and there are many people who trade on closing basis also. For me, personally speaking, if you are trading in futures and options, you don't wait for the candle to close. Stop loss hit is stop loss hit. Because अगर suppose आपने यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर suppose हमारा stop loss से suppose 150 के ऊपर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस हो गया, अगले दिन एक कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया, या फिर एक बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, या फिर इंट्राडे में मार्केट इतना नीचे आ गया कि आपकी जो कैंडल बंद हो रही है वो यहाँ बंद नहीं हुई, वो डायरेक्ट यहाँ बंद हुई, और वो डायरेक्ट बंद हो रही है 100 रुपीज पे। क्या हुआ? कैंडल क्लोज होते होते अपना कैपिटल ही क्लोज हो गया। सो इफ यू आर डूइंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, नेवर एवर वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज। स्टॉप लॉस हिट इज स्टॉप लॉस हिट। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि सर हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में इंट्राडे में वापस रिकवरी करके ऊपर चला गया एंड स्टफ, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, बट पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट ट्रेड ऑन क्लोजिंग बेसिस फॉर एफएनओ। हाँ, अगर सपोज आप डिलीवरी में हो, आप इन्वेस्टमेंट आपने किया है, आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आप सोच सकते हो कि आप क्लोजिंग बेसिस के लिए रुक जाओ। हो सकता है कि स्टार्ट ऑफ द, सपोज आप मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, स्टार्ट ऑफ द मंथ स्टॉप लॉस हिट हो गया बट बाद में रिकवर कर गया, तो देन दैट इज फाइन। बट एफएनओ के लिए इट इज अ बिग नो कि आप क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपका स्टॉप रखो। Yes, so this is clear to everyone? Yes, I will be providing, these are not live examples, but जो previously जो patterns में आए हैं and previously how it worked, yes, definitely I'm going to show you. Does it not automatically exit on stop loss? अब कैसा होता है, अगर आप stop loss system में place करते हो तो automatic hit होगा, but if you forget, so of course वो stop loss कैसे hit होगा? Okay. So now buy pattern सबको clear हो गया, ट्रेल एसएल भी हिट हो गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज सेल पैटर्न। जैसे बाय का पैटर्न है, एग्जैक्टली अपोजिट सेल का पैटर्न। अब ये सेल का पैटर्न आप बोलोगे कि सर सेल का पैटर्न कहाँ पे काम आएगा, हमको तो सिर्फ बाय पता है, हमको सिर्फ बाय करना आता है। बट द पीपल हु आर डूइंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वो हम शॉर्ट भी करते हैं, तो आई विल बी टेकिंग दिस एग्जाम्पल ऑल्सो जहाँ पे वी आर कवरिंग सेल पैटर्न। आई नो जो इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए ये शायद से इतना यूजफुल नहीं रहेगा, बट एफएनओ वालों के लिए यूजफुल है, सो आई विल क्विकली कवर दिस अप ऑल्सो। तो सेल पैटर्न के लिए एग्जैक्टली अपोजिट, ये एक नॉर्मल कैंडल है जहाँ पे हमें अपर विक भी है, लोअर विक भी है। देन देर आर 2 रेड कैंडल्स। जैसे बाय में हमने 2 ग्रीन कैंडल चाहिए थी, वैसे सेल में हमको 2 रेड कैंडल चाहिए, ठीक है। अब जैसे बाय पैटर्न है,
अब वैसे ही अगर सपोज आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई है, सो नाउ आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू कि जब हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस? प्लीज गिव मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस? करेक्ट, अपर विक ऑफ द फर्स्ट कैंडल, दैट शुड बी द स्टॉप लॉस। जैसे बाय में हमारा लोअर विक था, सेल में हमारा अपर विक रहेगा। सो दिस इज वेयर वी प्लेस एसएल एंड दिस इज वेयर वी शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया। अब ट्रेल एसएल पे आते हैं और एग्जिट पे आते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे जो हमारा सेल पैटर्न कंटिन्यू हुआ, जहां जहां पे भी हमें अपर विक मिल रहा है वहां पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा है, एंड अल्टीमेटली जब वो प्राइस उसके ऊपर चला गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड हमारा ट्रेल एसएल हिट हो गया। ओके, अब यहाँ पे मैंने कहीं पे भी कोई ट्रेंड लाइन की बात नहीं की है, मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं की है, मैंने कोई भी प्राइस पैटर्न जो आपने कभी सीखा होगा, देखा होगा, यूट्यूब पे सीखा होगा, मैंने किसी के बारे में कोई बात नहीं किया। वी ओनली नीड 3 कैंडल्स फॉर बाय फॉर सेल, दैट्स इनफ, खत्म। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, वो प्राइस पैटर्न, ट्रायंगल फॉर्मुलेशन से ब्रेकआउट, ये वो, दीज आर एडिशनल थिंग्स विच विल हेल्प यू टू हैव मोर कन्विक्शन कि चलो ठीक है, अगर सपोज एक कोई अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस से हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है और हाइकेनेशी पैटर्न भी कंफर्म कर रहा है, बाय पैटर्न हमारा कंफर्म हो रहा है, सो वहां पे आप बड़ा क्वांटिटी मारो। ठीक है, और जब आपको पता है कि ये यहाँ से हो सकता है कि रेजिस्टेंस फेस करेगा बट हाइकेनेशी आया है, बाय पैटर्न आया है, सो आप छोटा क्वांटिटी ले लो। जैसे जैसे ट्रेड आगे जाएगा, रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर जाता है, आप बड़ा क्वांटिटी ले लो। ठीक है, दिस इज, आई मीन, मैंने जितने भी पैटर्न्स देखे हैं या जो भी टेक्निक्स यूज की है, दिस इज बाय फार द मोस्ट सिंपलेस्ट टेक्निक दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस। और ये जो चीज है, ये मैं पिछले ऑलमोस्ट 4 to 5 years से मैं यही कर रहा हूँ। दिस इज द मोस्ट बोरिंग थिंग दैट आई हैव बीन डूइंग सिंस मेनी ईयर्स। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं करता हूँ। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टॉक्स स्कैन करना है या कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा बाय में आ रहा है, कौन सा सेल में आ रहा है। आई विल टेल यू ऑल दैट इन द लेटर स्टेज, बट दिस इज व्हाट आई डू। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं करता हूँ। यू विल बी शॉक टू नो, बिकॉज लोग के अलग अलग इंडिकेटर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, दे मिक्स ऑल द इंडिकेटर्स। तो मेरा बहुत सिंपल पैटर्न है। देयर इज अ क्वेश्चन, शॉर्ट सेलिंग इज अलाउड ओनली इन इंट्राडे? यस, शॉर्ट सेलिंग इज अलाउड इंट्राडे ओनली व्हेन यू शॉर्ट इन कैश। ठीक है, आप अगर फ्यूचर्स में शॉर्ट करते हो तो यू कैन कैरी टिल एक्सपायरी। अगर आप कैश में शॉर्ट करते हो तो आपको इंट्राडे में कवर करना पड़ता है। बट अगर आपको शॉर्ट करना ही है तो बेटर टू शॉर्ट वाया फ्यूचर्स, या फिर आप पुट ऑप्शन ले लो, विच आई थिंक विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट सेशन बाय माय फ्रेंड वीरल ठक्कर, जो आपको ऑप्शंस के बारे में बाकी सारी चीजें बताएंगे। So can we move on to the next part? Buy, sell, clear to everyone? Okay. Now I'll just give you a very short slide on normal candle versus HK candle, कि आप बोलोगे कि सर ये HK candle आप क्यों यूज करते हो, why it is used? So आप डिफरेंस एक देख सकते हो कि क्या होता है। जो नॉर्मल कैंडल होती है, actually normal candle is on the right side, HK candle is on the left side, so pardon me for the upper heading. So आप देख सकते हो नॉर्मल कैंडल स्टिक में क्या होता है, वहां पे आपको गैप्स दिखते हैं। इट इज नॉट अ वेरी स्मूथ थिंग। ओके, द पैटर्न इज नॉट वेरी स्मूथ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, सो यू कैन सी अ गैप हियर, देयर इज अ गैप हियर, देयर आर गैप्स हियर। सो इससे क्या होता है, जो भी हमारा चार्ट होता है ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, देयर आर गैप्स हियर। वही आप अगर एचके में देखोगे, यहाँ पे देयर आर नो गैप्स एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपको कोई भी एचके पैटर्न में कोई भी गैप्स नहीं दिखेंगे। इट इज अ वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द ट्रेंड इज। इसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझ में आएंगे। ठीक
ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप बोलोगे सर यहाँ पे एक डबल टॉप बन गया है, नॉर्मल कैंडलस्टिक में भी वो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, यहाँ पे भी आपको एक डबल टॉप दिख रहा है, सपोर्ट्स आपको यहाँ पे भी दिखेंगे, रेजिस्टेंसेस आपको यहाँ पे भी दिखेंगे, वो आपको नॉर्मल कैंडलस्टिक में भी दिखेंगे, यहाँ पे भी दिखेंगे, सो देयर इज नो डिफरेंस, बट द पॉइंट इज द चार्ट इज मोर क्लीनर एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके, नाउ जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आप सब लोग पूछोगे कि सर आपने बता तो दिया, ये इतना इजी स्ट्रेटेजी है कि ये ट्रेडिंग के लिए इतना इजी कैसे हो सकता है? हमने तो सुना है कि बहुत सारे लोग इतने सारे स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, कोई प्रॉफिट में रहता है, कोई लॉस में रहता है, मेजोरिटी सब लॉस में है, तो इतना सिंपल टेक्निक से कैसे वर्क करते हो आप? सो नाउ इट इज टाइम दैट आई टेक यू कि प्रैक्टिकली ये चीज कैसे वर्क करती है। जस्ट लेट मी नो इफ माई स्क्रीन स्टिल विजिबल, बिकॉज मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू शुरू किया है। Yes, my screen is visible. There is also another question, when to sell at 315 or earlier? Bharat sir, I will come to that. जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है मुझे और बार बार सुनने को मिलता है कि हमने कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, वेदर 9:15 ही बन गया तो बाय कर लो या फिर इस नॉर्मल से बाय करो। सो आई विल कम टू दैट लेटर। सो दिस इज अ कैंडल और दिस सॉरी दिस इज क्रूड ऑयल, ये हमको देखना नहीं है। सो नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ गेल। All right. Glenmark trade. केवल सर, yes, I'll come to that Glenmark trade. सबसे पहले what I'll do is, सबसे पहले जो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक कौन सा अच्छा टाइम फ्रेम होता है और वो कैसे वर्क करता है, I'll tell you all that, because वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग पूछते हैं कि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा अच्छा रहना चाहिए। सो दिस इज अ चार्ट ऑफ गेल, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज ट्रेडिंग व्यू अगर सब आप खोल सकते हो तो प्लीज़ आप ओपन कर लो, बिकॉज इट वुड बी वेरी ईजियर टू अंडरस्टैंड इफ़ यू हैव ट्रेडिंग व्यू। और ये यहाँ पे हाइकेनेशी जो HK का कैंडल है वो कैसे आता है ये भी मैं आपको बता दूँ। जो टाइम फ्रेम होता है यहाँ पे उसी के साइड में एक ऑप्शन है जहाँ पे यू हैव बार, यू हैव कैंडल, हॉलो कैंडल, नीचे जाके आपको यहाँ पे ये हाइकेनेशी दिखेगा। सो यहाँ पे यू कैन चेंज योर candlestick pattern to HK. ये normal candle है, this is the normal candle, and now you can change it to HK. Okay. So एक क्वेश्चन मुझे था सबसे, now I would need help of every one of you to understand कहाँ पे बाय पैटर्न बन रहा है और कहाँ पे सेल पैटर्न बन रहा है। और उससे पहले मुझे एक सवाल सबसे पूछना था कि कोविड का जो टाइम था, when did COVID time end? What was the year? 2020 में तो स्टार्ट हुआ था, खत्म कब हुआ था? यस, 2022 या 2021 मिड के आसपास में कोविड खत्म हो गया। एवरीवन एग्रीज विद मी। सो जो एक नॉर्मली एक फोमो होता है कि यार कोविड के टाइम का जो ट्रेड एक बार अगर लग गया होता तो बहुत बड़ी लॉटरी लग जाती। ये कॉमन फोमो है जो सबको होता है, मुझे भी होता था, राइट। सो अब मैं बताता हूँ, वी आर सीइंग एन एग्जांपल ऑफ गेल इंडिया, ठीक है। कोविड के टाइम का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई प्राइस पैटर्न नहीं हमें देखना है। यहाँ पे ये इंडिकेटर है मेरा मूविंग एवरेज का, वो भी मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज आई थिंक अगर आप नीचे देख सकते हो, दिस इज November 2020 द डेट। दिस इज अ बाय पैटर्न। कैन एवरीवन confirm this? Am I right? Is this a buy pattern? This one? Right. So ये जो ट्रेड है, this is of January 21, कोविड टाइम का ट्रेड है। अब
यहाँ पे if anyone can write this down, यहाँ पे हमने बाय कौन से लेवल पे किया है? If my screen is entirely visible, we have bought at 86 rupees. जो क्लोज आया है that is 86. So anyone can volunteer and just write it down कि हमने 86 पे यहाँ पे बाय किया है, so that मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ट्रेड है वो वर्क कैसे करता है. ठीक है, स्टॉप लॉस कितना परसेंटेज होता है, कैसे रिस्क रिवॉर्ड कैसे बैठता है. जब ये जो बाय पैटर्न है ये जब चलेगा तो कितना परसेंटेज चलेगा, और जब ये स्टॉप लॉस हिट करेगा तो कितना लेके जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली कितना आएगा कितना जाएगा, दैट इज द मेन पॉइंट. सो 86, यस 86.33, सो वी कैन जस्ट राउंड इट ऑफ टू 86. 86 पे सपोज हमने बाय कर लिया. एंड व्हाट इज द स्टॉप लॉस? कैन एनीवन टेल स्टॉप लॉस कितना हो रहा है? यस, स्टॉप लॉस इज 55. सो वी हैव बॉट इट 86 एंड हमारा स्टॉप लॉस 55 का है. स्टॉप लॉस का परसेंटेज क्या है क्या नहीं ये हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द पैटर्न. ठीक है, अब हम आगे जाते हैं. फरवरी में हमारा स्टॉप लॉस, डिड आवर स्टॉप लॉस ट्रेल इन फरवरी? कितना हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है? कैन एनीवन टेल? देयर इज ओनली वन आंसर ऑफ 77. एनीवन एल्स? स्टॉप लॉस कितना होगा हमारा? यस, द करेक्ट आंसर इज 55. रीजन बीइंग यहाँ पे हमें वीक नहीं मिला है, सो इसीलिए हम स्टॉप लॉस अभी ये महीने में ट्रेल नहीं करेंगे. सो देयर इज नो ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस बिकॉज ओपन एंड लो आर द सेम. तो हमारा जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस था वो वही रहेगा. ठीक है, अब हम जाते हैं मार्च की तरफ. मार्च में भी हमें वीक नहीं मिल रहा है, देयर इज नो वीक हियर. ठीक है, अब हम जाते हैं अप्रैल में. अप्रैल में हमें वीक आ गया. व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट? 85.67, राइट. सो अब हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे या नहीं करेंगे? yes, we'll trail our stop loss. So 85.67 है, so we'll just round it off to 85. अब क्या हो गया, हमारा जो ट्रेड है ये लॉस में नहीं जाएगा, इसकी हमको गारंटी मिल गई. बराबर, जो 85 86 पे हमने बाय किया था, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 85 है. जाएगा तो 1 रुपया जाएगा, राइट. अब विल गो टू द नेक्स्ट मंथ. अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फिर से एक बाय पैटर्न बन चुका है. हम यहाँ पे एंटर किए थे, फिर से एक बाय पैटर्न बन गया है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमने क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, कुछ करनी चाहिए, सिर्फ बन गया है बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन दैट ट्रेड. सो यहाँ पे हम बाय नहीं कर रहे हैं. ठीक है, बट यहाँ पे भी अगर हम बाय करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है. वील टेक दैट एज एन अनदर एग्जाम्पल. तो इन द प्रीवियस एग्जाम्पल जून तक हमारा कोई ट्रेलिंग नहीं आया, जुलाई में हमारा एक ट्रेल आ गया. ठीक है, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा कितने पे हो गया? जुलाई का लो, सॉरी 91 पे हो गया. 91 पे हमने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया. उसके बाद में अगस्त हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया कितना? 92.9. ठीक है, वेरी क्लोज. उसके बाद कितने पे हुआ? 96. नो, वी वोंट एग्जिट बिकॉज दिस लो वाज 91 एंड नेक्स्ट मंथ तो 92.9 था, तो 92 भी पकड़े तो वी वोंट एग्जिट. ठीक है, सो यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हमारा जो स्टॉप लॉस आया 97 आया. मतलब गेल वही रेंज के आसपास सपोर्ट ले रहा था, और 91 से लेके 97 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस आया. ठीक है, अब 97 पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया. अगले महीने नवंबर में क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? हमारा स्टॉप लॉस 85 पे ट्रेल होगा या हम एग्जिट करेंगे? यस, करेक्ट, यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे. सो व्हाट डिड वी डू? हमने 86 पे बाय किया और हमारा 97 पे एग्जिट हो गया. ट्रेड प्लस में गया. ठीक है, जितना गया, कितना परसेंटेज आया, मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ.
दिस इज कोविड टाइम का ट्रेड, ठीक है। अब दिस इज गेल इंडिया। अब आप बोलोगे कि सर कोविड टाइम में तो दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स थे, बट मैं जस्ट गेल का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब व्हाट विल डू, हम गेल को ही ट्रैक कर रहे हैं। अभी ये यहाँ पे फिर से एक पैटर्न बना है, करेक्ट। जो रैंडम पैटर्न्स बन रहे हैं मैं वहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं। वी आर नॉट, मैं कोई ऐसा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे आया और ये कितना अच्छे से चला या कितना अच्छे से इसने ब्रेकआउट दिया और कितना स्मूथ इसने आपको प्रॉफिट दिया, ठीक है। एवरी बाय पैटर्न जो हिट हो रहा है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखते थे तो यहाँ पे बाय पैटर्न है, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, अल्टीमेटली स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी बाय करते थे, जून में बाय करते थे तो क्लोज 105 पे हम बाय करते थे और हमारा 97 पे स्टॉप लॉस हिट होता था। अगर आप अप्रैल से लेके जो जून का कैंडल है वो आप देख रहे हो, तो 105 पे बाय किया, 97 पे एग्जिट किया, ठीक है। 10 रुपए गया हमारा। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं, इसका लोएस्ट पॉइंट इज, व्हाट इज द स्टॉप लॉस हियर, 85, और हमने बाय कौन से प्राइस पे किया, 107, ठीक है। 107 पे बाय किया, 85 का हमारा स्टॉप लॉस है। अब क्या हुआ, अगले महीने स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया बिकॉज हमें लोअर वीक आ गई। व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट इज 94, ठीक है। अब क्या हो गया, 94 पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया और अगले महीने स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो 107 पे लिया हुआ ट्रेड 94 पे एग्जिट हो गया, ठीक है। अब हम अगले इसमें जाते हैं, अब हम अगले प्राइस पैटर्न ढूंढते हैं, ठीक है। अब कोविड का टाइम तो खत्म हो गया, ठीक है। वी आर इनटू 2023। सो अब बाय पैटर्न जो बन रहा है, इफ यू कैन सी, यहाँ पे एक बाय पैटर्न बन रहा है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू देख सकते हो तो प्लीज मेरे साथ रहो। फ्रॉम 1 Feb 23 टू अप्रैल एक बाय पैटर्न बन रहा है। एवरीवन इज विद मी, बन रहा है, यस। सो अब जब बाय पैटर्न बन रहा है, व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट हियर, 91, राइट। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 91 हो गया और हम बाय कौन से प्राइस पे कर रहे हैं, अगेन 107 पे हमने बाय किया, 91 का हमारा स्टॉप लॉस लग गया, करेक्ट। अभी अगर कोई एक पर्सन है जिसने HK का पैटर्न यहाँ पे ट्रस्ट करके बाय किया है, किसी की हिम्मत होगी वापस जब HK पैटर्न यहाँ बन रहा है फिर से बाय करने की? साइकोलॉजिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट। जब ऑलरेडी एक बार वही लेवल से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और अगर वो स्टॉक वही लेवल पे वापस आता है तो वहां से बाय करने की इच्छा नहीं होती है। इट इज नॉर्मल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, ठीक है। बट नाउ वील लुक एट हाउ इट टर्न्स आउट, ठीक है। अगली महीने यहाँ पे हमें छोटी सी लोअर वीक मिली, आई जस्ट जूम इट अ लिटिल बिट मोर, ठीक है। यहाँ पे हमें लोअर वीक मिली, हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। हमारा स्टॉप लॉस कितने पे ट्रेल हुआ, 103 पे, इट इज 102.95, सो लेट्स जस्ट राउंड इट ऑफ टू 103, ओके। अगले महीने फिर से लोअर वीक मिली, 103.3 है। सो इफ वी गो पॉइंट टू पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके नीचे जाता है तो वील एग्जिट, तो पॉइंट टू पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। देन फिर से अगले महीने फिर से एक छोटी सी एक लोअर वीक मिली है। सो वी आर गोइंग थियोरेटिकल वाइज, हमें अगर वीक मिली हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, कितने पे हो गया, 104.7, लेट्स राउंड इट ऑफ टू 105, ठीक है। 105 पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। नाउ मूविंग अहेड, अक्टूबर में फिर से हमें स्टॉप लॉस मिला 116 पे, देन नेक्स्ट 117.4, तो 117 पे हम ट्रेल करते हैं। जो हमारा 107 का बाय था, अब हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया, 117 हो गया। तो जो ट्रेड है वो लॉस में तो नहीं जाएगा, इतना हमको पता है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, हमारा जो स्टॉप लॉस है ना, दिसंबर से लेके डायरेक्टली हमारा जो स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ है वो जून 24 में ट्रेल हो रहा है, और वो कितने पे ट्रेल हो रहा है, 173,
0.5. Let's round it off. 173, 174 doesn't matter. 107 का लिया हुआ ट्रेड 173 पे, तो सिर्फ हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये हुआ है. दिस इज नॉट अ एग्जिट. और ये लो का इंपॉर्टेंस कोई बता सकता है? June 24, what is the importance of that? This is इलेक्शन डे लो. ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे जो बहुत बड़ा पैनिक आया था, अगर कोई पर्सन ये ट्रेड में बैठा है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये क्या करेगा? मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रेल हो रहा है. 173 पे उसका स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया. ठीक है, सो हम जो एक हमेशा चीज फॉलो करते हैं, जहाँ पे भी लुक एट कि अरे यार हमारा स्टॉप लॉस मार्केट नीचे आ रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इतने हम जो अच्छे बड़े गेन्स पे बैठते हैं. सो अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको कभी भी ये क्लिक होना चाहिए कि अगर सपोज मार्केट नीचे आ रहा है या मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो दैट मीन्स मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब कहीं ना कहीं आ जाएगा. दैट इज द थिंग जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है, रादर देन पैनिकिंग कि अरे यार ये नीचे क्यों जा रहा है, चलो निकल जाते, चलो निकल जाते, चलो निकल जाते, एक बार का कट लेते, बाद में देखेंगे एंट्री करना नहीं करना. ये माइंडसेट से आपको ये जो प्राइस पैटर्न है, या अगर इसको आप रिलीजियसली फॉलो करते हो, आप इससे दूर हो जाओगे. आपको लगेगा कि अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है, नीचे जा रहा है, तो अब मुझे पता है मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा. ठीक है, अब वापस नेक्स्ट इसमें जाते हैं. अगस्त तक हमारा कोई स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं हुआ. देन सितंबर 2024 लो कितना लगा? 208.62. लेट्स अज्यूम 208 ओनली. ठीक है, अगले महीने क्या हुआ? हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमने एग्जिट कितने पे किया? 209 पे, 208 पे. हमने बाय किया था 107 पे और हमें एग्जिट मिला 208 पे. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्राइस पैटर्न. जब ये लेके जाएगा, जब भी आपको ये लॉस देगा, ये मैं कोई जादू की कोई ये छड़ी नहीं है कि ये सिर्फ आपको प्रॉफिट ही देगी. देयर इज नो सिस्टम इन द वर्ल्ड जो आपको सिर्फ प्रॉफिट ही देगी. आपको सिर्फ आपका सिस्टम ऐसा बिठाना है जहां पे आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर ये मेरा कैपिटल ब्लो करेगा या मेरे को ये लॉस देगा ये सिस्टम, तो ये छोटा लॉस देगा, बट जब ये चलेगा तो ये मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट देगा कि मेरे पुराने सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे. जो हम देखते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो हम बोलते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए, तो ये यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली मैनेज होता है. ये ऑलरेडी मैंने बहुत इसका बैक टेस्टिंग किया है. यहाँ पे हमने ये कहीं नहीं देखा ये गेल के इसमें कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, नहीं है, सपोर्ट है, क्या है, क्या है, कुछ भी नहीं. प्लेन ब्लैंक. अगर ये कोई आप 8 स्टैंडर्ड के बच्चे को भी अगर समझा दोगे, उसको भी ये चीज समझ में आ जाएगी. एक्स्ट्रा का माइंड जितना आप कम अप्लाई करोगे, जितने आपका जो स्क्रीन है, ये जो मेरी स्क्रीन आप देख सकते हो यहाँ पे, सिर्फ मेरे पास जो इंडिकेटर्स है, जो मुझे लोग पूछते हैं कि आप कौन से इंडिकेटर्स फॉलो करते हो, क्या करते हो, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वॉल्यूम, और दूसरा होता है मूविंग एवरेजेस. अभी मूविंग एवरेजेस थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, इसको हम बाद में लेंगे, तो ये इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ. तो मेरे जो स्क्रीन होती है सामने, सिर्फ इतना ही मुझे दिखता है. मैं RSI यूज नहीं करता हूँ, मैं MACD यूज नहीं करता हूँ, या मैं कोई फीबो सीरीज जो करते हैं लोग, वो भी मैं नहीं करता हूँ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है. सबके पास अपना अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है, एंड दैट हैज टू बी फॉलोड वेरी रिलीजियसली. अगर आप वो करते हो, आपको RSI पसंद है, MACD पसंद है, आप इसके अंदर RSI MACD लगाना है, बिंदास लगाओ, आपको कोई मना नहीं किया है. बट मैं नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे सिंप्लिसिटी चाहिए. दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग विच आई हैव एवर कम अक्रॉस एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस, और ये मेरे लिए बहुत सक्सेसफुली काम किया है. हाउ टू अंडरस्टैंड SL इन केस ऑफ न्यूली लिस्टेड IPO. न्यूली लिस्टेड IPO में टेक्निकल एनालिसिस आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज कोई कैंडल ही नहीं है, कोई
प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है तो यू जस्ट कैनॉट। ट्रेलिंग एसएल आफ्टर मार्केट आज रख सकते हो बिकॉज आप लो तो आफ्टर मार्केट ही देख पाओगे ना। यस दीप, एक्चुअली जो ट्रेलिंग एसएल होता है, जब भी स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा है, अब सपोज फॉर एग्जांपल ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, तो जब भी आपका स्टॉप लॉस जैसे 173 पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ है, तो वो नेक्स्ट मंथ आपको 173 देखना कि अगले महीने 173 के नीचे तो नहीं जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारा एग्जिट हुआ यहाँ पे 208 पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ, तो नेक्स्ट मंथ आपको चेक करना है कि 203 के नीचे तो नहीं जा रहा है, बिकॉज जब तक सितंबर की कैंडल चल रही है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो तो 173 है। सितंबर में जब हम ट्रेड कर रहे हैं तब तो आपका स्टॉप लॉस 173 है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 208 हो गया, उसके बाद वो हिट हुआ। तो ये आफ्टर मार्केट का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। हाँ, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको समझ में आएगा 3.5 के बाद, अगर सपोज आप डेली टाइम फ्रेम फॉलो करते हो तो। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे करते हो तो आपको तुरंत समझ में आएगा जब भी आपकी कैंडल क्लोज होगी। There are some few questions regarding IPO which is not relevant to this topic, so please don't ask that question because वो एक अलग ही चीज है, उसके ऊपर हम नहीं आते। So ये आपको समझ में आएगा कि ये मंथली टाइम, अब इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मंथली टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम जो आप यूज कर सकते हो। अभी मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। दिस इज द चार्ट ऑफ BSE, ठीक है। BSE का चार्ट भी अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है, ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से एक फॉलिंग पैटर्न है और यहाँ पे हमारा HK का बाय पैटर्न बना है। सो आफ्टर अ सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स वी हैव अ बाय पैटर्न। और मैं टेक्निकलिटीज पे नहीं जाऊंगा कितने पे लिया कितने पे एग्जिट किया, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हमारा बाय बना है तो वो बाय हमारा कितने पे बना है, इट इज एट 195, ठीक है। 195 पे हमारा बाय बना है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 144, ठीक है। 195 पे बाय किया है 144 के स्टॉप लॉस से, और जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है इट इज 660 647, यस, यहाँ पे 660 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जो BSE एक मल्टी बैगर एक स्टॉक है, सो ये HK में भी आया है। आपको कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक आपको चाहिए, एवरीथिंग कहीं ना कहीं कोई भी प्राइस पैटर्न में आपको मिल ही जाएगा। Okay, so this was one example of BSE. Now coming to the some favorite part कि अब फ्यूचर ऑप्शन में सो कैसे ट्रेड करें, ट्रेडिंग कैसे करनी है। सो मैं जो टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, आई यूज डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अ ट्रेड विच आई वेरी रिसेंटली टुक। ग्लेनमार्क। अब यहाँ पे मैंने थोड़े प्राइस पैटर्न्स वगैरह भी सब देखे थे और उसके बेसिस पे मैंने एंट्री ली थी। सो यहाँ पे दिस इज द प्राइस पैटर्न ऑफ ग्लेनमार्क। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, और जब यहाँ पे ये तो ठीक है, यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे। अब ये इतने बड़े वॉल्यूम की वजह से ये वॉल्यूम यहाँ पे छोटा दिख रहा है जब ब्रेकआउट आया था, बट जो ब्रेकआउट यहाँ पे आया था यहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम्स डेवलप हो रहे थे। सो नाउ यू कैन जस्ट लुक एट कि जब ग्लेनमार्क चला है, ठीक है, यहाँ पे दिस इज द ओरिजिनल HK बाय, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट इज 1388, आई विल जस्ट राइट इट डाउन। 1388 पे हमारा स्टॉप लॉस आया है, हमने बाय किया है 1485 पे, 1485 पे बाय, 1388 का स्टॉप लॉस।
ठीक है, ये ट्रेड का ट्रेल एसएल यहाँ पे आया है 11 जून को, जो आया है 1592 पे। ये सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। 2 दिन बाद 1609 पे इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आया। ठीक है, अल्टीमेटली वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। 1485 का बाय 1609 पे एग्जिट हो गया। बट जब मैंने एंट्री लिया, मैंने ये रैली मैंने मिस कर दिया था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये रैली मैंने नहीं देखी थी। मैंने जब वो ट्रेड देखा था, मैंने वो ट्रेड यहाँ पे देखा था, जब ग्लेनमार्क एक अच्छे रेंज, जो यहाँ से इसने हमेशा से एक पॉइंट था जहाँ से सपोर्ट लेता था, फिर वो सपोर्ट टूट गया यहाँ से, फिर वो एक रेजिस्टेंस बन गया और फिर काफ़ी टाइम बाद वो यहाँ पे आया, ब्रेकआउट देने की कोशिश की, रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे मैंने उसको बाय किया। ठीक है, सो दिस वाज द पॉइंट। अगर पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बिकॉज आई एंटर्ड हियर ओनली, मैंने थोड़ा सा पहले ही बाय कर लिया था। बट अगर प्राइस पैटर्न के हिसाब से, बाय पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो 1707 पे हमारा बाय आया, जो हमारा स्टॉप लॉस था दैट वाज 1630। 1707 पे बाय किया, 1630 का हमारा स्टॉप लॉस लगा। जब ये ट्रेड चला, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ट्रेल हुआ ऑन 10th of July। ठीक है, वो लोएस्ट पॉइंट वाज 1821। तो 1821 पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, जो 1707 का बाय था। 1821 पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ। एंड देन एक न्यूज आई कि ग्लेनमार्क हैज अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद अ यूएस कंपनी, एंड ग्लेनमार्क वाज ऑन एन अपर सर्किट ऑफ 15%, 19% तक ऊपर गया था। एंड दिस वाज द लेवल जहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें मिला 2202 पे, और अल्टीमेटली अगले दिन, मतलब आज का दिन, मंडे 21st of July, हमें एग्जिट मिला। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतने टाइम तक वेट नहीं किया। मैंने जब वो अपर सर्किट लगी थी तभी मैंने एग्जिट कर लिया था, बिकॉज आई थॉट कि वहाँ से अगर नीचे गया तो क्या कर सकते हैं, बिकॉज क्वांटिटी भी बड़ा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एग्जिट वुड बी मोर बेटर। दिस वॉज द ट्रेड ऑफ ग्लेनमार्क विच आई मेड। Any questions? How can we correlate volume with candles? It is very simple. जब भी आपको कोई ब्रेकआउट दिखता है तो आप जस्ट नीचे वॉल्यूम्स एक बार चेक कर लो। सो कोई भी ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स आता है, कोई भी ब्रेकडाउन पे वॉल्यूम्स आता है, तो यू नो दैट देयर इज अ गुड वॉल्यूम डेवलपिंग एंड यू कैन एंटर इन दैट ट्रेड। हाउ मेनी शेयर डिड यू टेक, दैट इज अ सीक्रेट विच जो मेरे पास ही रहने दो, दैट इज नॉट to be supposed to be disclosed. Okay, so now I'll give you another example. There is an example of IIFL. ठीक है, IIFL अगर आप देखते हो, दिस इज ऑन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, मैं इसको वीकली पे कन्वर्ट करता हूँ सो दैट द चार्ट इज वेरी इजियर टू लुक एट। ठीक है, अब वीकली पे आप देखोगे तो बहुत पहले से बाय आया है, बट ये जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन, फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला इन दिस मंथ ओनली, सो दैट इज वाई आई टुक अ ट्रेड हियर। ठीक है, इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू डेली टाइम फ्रेम, अगर आप देखते हो तो ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, वहां से नीचे गया, और फिर जब यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, एट दिस वाज द टाइम व्हेन आई एंटर्ड दिस ट्रेड। It was around 500 and 507 or 509 was the level which I entered. And if you can look here, थोड़ा सा इसको मैं और जूम करता हूँ। If you can see, यहाँ से जो ये ट्रेड मिला है अभी तक, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा विक है on 17th of July, a very small wick, but if you can consider, we can consider that as a stop loss because open is 523.72 and low is 523.10। तो लेना है तो हम यहाँ पे 523 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो ये जो ट्रेड है ये अभी भी चल रहा है, एंड हो सकता है कि आगे जाके ये अगर
चल गया तो आगे चलेगा, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। बट इतना मुझे पता है कि यहाँ से अब जो भी ट्रेड आएगा ये मेरा प्रॉफिट में निकलेगा, लॉस में तो नहीं जाएगा। दिस वॉज अनदर ट्रेड ऑफ IIFL। यहाँ पे आप प्राइस पैटर्न भी स्टडी कर सकते हो, जैसे ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, फिर यहाँ पे ये जो हाइज है, ये एक एरिया है जो IIFL ने नहीं निकाला था, अब वो उसने वो लेवल क्रॉस किया है। ठीक है, सो देर आर सम प्राइस पैटर्न विच यू कैन स्टडी। देर इज ऑल्सो अ क्वेश्चन whether HK is enough या you need more. To be very frank, अगर सपोज जैसे आपको ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, कोई सपोर्ट से एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, तो दैट एक्ट्स एज एडेड एडवांटेज टू HK, या फिर HK इज मोर देन इनफ। इसके अलावा आपको दूसरी और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। आई ओनली डू दिस। अगर आपको ये RSI का, MACD का, या जो भी, जैसे मैंने बोला कोई भी इंडिकेटर का, अगर आपको कोई अच्छा एग्जांपल मिलता है तो यू कैन टिक, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ इट इज देयर देन इट इज गुड थिंग। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द पार्ट कि सर आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता दी, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड थे तो आपने बहुत अच्छे अच्छे बता दिए, बट इवन अगर सपोज FNO में भी ट्रेड करना है, सो देर आर ऑलमोस्ट 220 प्लस स्टॉक्स जो फ्यूचर्स में है, और कैश की तो मैं बात ही नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टॉक्स है। सो आप बोलोगे कि सर इनको हम स्कैन कैसे करें, हमको पता कैसे चलेगा कि आज कौन सा आया है, या मंथ एंड पे कौन सा आया है, या फिर हमने कौन सा शेयर लेना चाहिए? दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ एवरीवन, एम आई राइट? ये क्वेश्चन रहेगा सबका। अच्छी बातें तो आपने कर दी सर, अभी मैं काम की बात पे आता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब व्हाट आई डू इज, सबसे पहले आई फाइंड द सेक्टर जहां पे बाय या सेल कंफर्म हो रहा है। जैसे स्टॉक्स का कैंडल बनता है, वैसे इंडेक्स की भी कैंडल बनते हैं। आई होप एवरीवन नोज दैट, राइट? अगर सपोज मुझे ग्लेनमार फार्मा का मैंने ट्रेड लेना है, तो मैं कौन सा सेक्टर देखूंगा? विच सेक्टर विल आई सी इफ आई वांट टू टेक अ ट्रेड ऑफ ग्लेनमार्क? यस, फार्मा का देखूंगा। सो निफ्टी फार्मा का एक इंडेक्स है, और निफ्टी फार्मा का इंडेक्स भी ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, जिसके कैंडल्स बनते हैं, एंड वही सेम चीज हमें फॉलो करनी है इफ यू want to find a good trade। ठीक है, सो आई फाइंड अ सेक्टर, देन व्हाट आई डू, देन उसमें मैं ये देखता हूँ कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, बिकॉज जो स्टॉक्स का ज्यादा वेटेज रहेगा इंडेक्स भी उसी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, फिर मैं ये चेक करता हूँ कि वो स्टॉक में स्ट्रेंथ कितनी है, वीकनेस कितनी है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी IT अगर सपोज सेल में आ रहा है तो आंख बंद करके HCL को ठोक दो, इन्फोसिस को ठोक दो, या TCS को ठोक दो, ऐसा नहीं है। हर एक स्टॉक का भी अपना एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होता है, इनहेरेंट वीकनेस होती है, वो भी अपना एक प्राइस पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे सपोज IT को अगर सपोज मुझे शॉर्ट करना है, नॉट नेसेसरी कि इन्फी उतना नीचे जाएगा, हो सकता है HCL भी उसको नीचे लेके जा सकता है, TCS भी उसको लेके नीचे जा सकता है। सो आई हैव टू फाइंड कौन से शेयर में उतना स्ट्रेंथ है या उतना वीकनेस है। ठीक है, एंड देन टेक ट्रेड विद स्टॉप लॉस, सिंपल इनफ। अब अगर आप देखोगे कि बोलने को बहुत आसान है, आप बोलोगे सर ढूंढेंगे कैसे, वो मैं बता दो। जितने सेक्टर्स है, अगर सपोज आपको FNO में ट्रेड करना है, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट भी करना है, आपको कितने सेक्टर्स है जो फॉलो करना है? उंगलियों पे आ जाएंगे उतने सेक्टर्स है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फार्मा, IT, ऑटो, मेटल्स, FMCG, फिन निफ्टी, PSU इंडेक्स, PSU बैंक्स, राइट? दीज आर द मेजर सेक्टर्स जो है। इसके अलावा दूसरे भी है, देर इज रियलिटी सेक्टर ऑल्सो, देर इज मिड कैप ऑल्सो, देर इज स्मॉल कैप ऑल्सो, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है। तो आपको क्या करना है, बस आपके गिने चुने जितने 7-8 सेक्टर्स है, हर सेक्टर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मूवमेंट आने वाली है, तो बस आपको वही सेक्टर देखना है, कभी ना कभी उसमें बाय या सेल आएगा। वेट फॉर द प्राइस पैटर्न टू कंफर्म कि चलो अब हमको ट्रेड लेना है। जब तक आप रुकोगे तो
आप फायदे में रहोगे, गड़बड़ करोगे, ओवर ट्रेडिंग होगी, लॉस में जाओगे। फिर जब एक्चुअल ट्रेड करने का टाइम आएगा, जैसे कोई अगर ग्लेनमार्क का टाइम आया, जैसे कोई दूसरे स्टॉक का टाइम आया, IIFL का टाइम आया, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। दिस इज अ साइकोलॉजी विच यू नीड टू फॉलो। सो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर, यू नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट कि जब सेटअप आएगा तभी हम बाय करेंगे। इसमें बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि सर दूसरे कैंडल पे ही बाय कर लिया तो तीसरे कैंडल पे हमको मालूम है ऊपर जाएगा जाएगा, ज्यादा फायदा होगा। ऑफ कोर्स यू कैन डू, ठीक है, सो कर सकते हो, बट जो ये चीज मैंने देखी है, थर्ड कैंडल पे बाय करना, इट गिव्स मोर कंफर्ट लेवल टू मी, सो जस्ट बाय मैं तीसरे कैंडल पे बाय करता हूँ। सो अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं सेक्टर वर्सेस स्टॉक का, दिस इज अ वेरी क्लासिकल केस। ऑन द राइट साइड जो हमने गेल का एग्जांपल देखा, एंड ऑन द राइट साइड इट इज निफ्टी PAC इंडेक्स। कुछ लोगों के दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा होगा कि सर स्टॉक और सेक्टर कभी साथ में चलते हैं नहीं चलते, हमको नहीं पता, तो ये एक लाइव एग्जांपल है आपके सामने। गेल जब बाय में आया, निफ्टी PAC इंडेक्स भी बाय में आया, और जैसे जैसे PAC इंडेक्स चला वैसे वैसे ही गेल चला, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर PAC इंडेक्स में तो दूसरे भी स्टॉक्स है, सिर्फ गेल ही क्यों? गेल इज जस्ट एन एग्जांपल, आप दूसरे भी बहुत सारे स्टॉक्स ले सकते हो। यू कैन टेक PFC फॉर एग्जांपल, ONGC ले लो, कोई भी ले लो, REC ले लो, एनी स्टॉक दैट यू वांट टू टेक यू कैन टेक। आपको ये पता चलेगा कि ये प्राइस पैटर्न जो निफ्टी PAC इंडेक्स में हुआ है उसी के उसको वो फॉलो करेगा, ठीक है। एवरीथिंग क्लियर अंटिल नाउ? कोई क्वेरी इसमें? ठीक है, सो अब मैं आपको जस्ट एक चीज ये बताता हूँ। देर इज एन एप्लीकेशन विच इज known as a charting. सो चार्टिंग पे ये एक वेबसाइट है जहाँ पे ना फिल्टर्स वर्क करते हैं। तो आई हैव एडेड माय फिल्टर्स हियर, सो आई विल जस्ट शो यू दिस HK Buy. So you can take a screenshot of this. ठीक है, दिस इज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। So you can see there are conditions mentioned here. Is my screen visible? Yes, so you can take a screenshot of this. आप चार्टिंग पे जाओ, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो चीज़ें डाली है, आप एग्जैक्टली सेम चीज़ आप वहाँ पे डालो, और आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे रन स्कैन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये रन स्कैन क्लिक करोगे, ये आपको बता देगा कि कौन से ऐसे शेयर्स है जो आज बाय में आए हैं, बाय सेटअप में पॉपअप हुए। दिस विल गिव यू एन एंटायर लिस्ट। इसके हिसाब से आप जाओ, देखो कौन से शेयर में कौन सा ट्रेड लेना है, एंड यू कैन टेक इट। प्लीज शो प्रीवियस स्क्रीन। या जस्ट अ मोमेंट, यही बोल रहे हो जहाँ पे वी आर डिस्कसिंग द कंडीशंस? कौन सा वाला स्क्रीन? PPT देखना है या फिर ये यहीं पे मैं स्कैन्स में कहाँ पे गया वो देखना है? तो ये जो स्क्रीन है यहाँ पे, ये डैशबोर्ड में आप यहाँ पे स्कैन्स में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप स्कैन्स में गए तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने स्कैन्स यहाँ पे लगा के रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये HK Buy वाला जो है वो आपको बताया है, ठीक है। आप ऐसे HK Buy का कर सकते हो, सेम अपोजिट चीज आप HK Sell का भी कर सकते हो। आपको चाहिए आप HK Buy वाला जो है इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार निकाल लो, एक बार हो जाए तो मुझे बता देना, मैं HK Sell का भी आपको बता दूंगा।
ले लिया सबने? यस। अब यहाँ पे मैं आपको सेल का भी दे देता हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इज वेल। यस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। सेल में भी जो भी आते हैं ये आप डाल सकते हो। इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी कि जैसा हमने देखा कि वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द कलर ऑफ द कैंडल, ठीक है, कैंडल के कलर से हमको फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे जो भी कंडीशन है, आपको 2 डेज अगो वाली जो कंडीशन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जो है, ये एक बार के लिए आपको ग्रेटर देन को लेस देन करना पड़ेगा, बिकॉज आपको ग्रीन कैंडल भी चाहिए और रेड कैंडल भी चाहिए, तो उतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपने रन स्कैन किया, ये देखो यहाँ पे शॉर्टिंग वाले सारे आ गए, IRCTC, टाटा टेक, साइंट, मैक्स हेल्थ, मारुति, डीवीज, एम्फेसिस, डाबर, ये आज के हैं सारे जो सेल के लिए आ सकते हैं। ओके, मैं फिर से सेल वाला सामने रख रहा हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यस, so I think now we are at the end of this session. So if you have any question, what is setup? Setup मतलब जो बाय का पैटर्न बन रहा है, that is known as setup. मतलब ये एक ट्रेडिंग स्लैंग है जो यूज होता है। मतलब मेरा बाय पैटर्न अगर कहीं पे बन रहा है तो आई कॉल इट दैट, या जो ये HK का जो ये पूरा जो मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, दैट इज बेसिकली माय सेटअप। तो ये सेटअप में अगर आता है तो मैं बाय करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स। So if we have any questions or queries, we can take that up. Anyone has any queries regarding कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग, या अगर सपोज आपको कोई स्टॉक देखना है तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, या जो आपका शेयर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, सो आपको बस एक ही चीज़ देखनी है, ये चीज़ देखनी है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। I don't think that there is any. Yeah, okay, there is, sorry. Just want to know whether can we place trailing stop loss after market hours? No. How do you check weakness and strength? अब एक्चुअली वीकनेस या स्ट्रेंथ ये ऐसा होता है कि जब आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू अ गुड एग्जांपल, जस्ट अ मोमेंट। Is my screen visible? Yes. So I'll show you how strength and weakness work. There is this share, ABB India. I'm tracking this for a long time. Okay, this is my favorite stock to short. ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ पे कवर हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर से उसको शॉर्ट किया, मेरा वो शॉर्ट यहाँ पे कवर हुआ, तो ऑलमोस्ट आई गेन वेरी गुड रिटर्न्स ऑन दिस शॉर्ट ऑल्सो। सो आपको क्या करना है सर, एक ही चीज़ देखना है, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी से चीज़ें कंपेयर करनी है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जैसे निफ्टी ने, जब हम अगर सपोज आते हैं, दिस इज I'll just shift this to a monthly time frame. Sorry, let this be week. अब वीकली टाइम फ्रेम पे आता है तो मई से लेके तो जून जुलाई तक जब निफ्टी चल रही थी, अच्छे से चल रही थी, जून में भी निफ्टी ऑलमोस्ट 25,500 के लेवल्स इसने टच कर दिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एबीबी का जो शेयर है ये ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था, दिस वॉज नॉट मूविंग। जैसे निफ्टी ऊपर जा रही थी तो एबीबी का शेयर एक्चुअली कंसोलिडेट करके नीचे आ रहा था। सो दिस इज अ साइन ऑफ वीकनेस ऑफ द स्टॉक। तो ये अब ऐसा है कि ये अब आपको खुद से ट्रैक करते रहना पड़ेगा।
आपको सिर्फ ये देखना है कि जब मार्केट अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो कौन सा ऐसा शेयर है जो निफ्टी के साथ में नहीं चल रहा है या वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो जब मार्केट रिवर्स होगा तो सबसे पहले आपको वीक स्टॉक्स को शॉर्ट करना है। सिमिलरली जब मार्केट गिर रहा है, ऐसे कौन से शेयर है जो गिर नहीं रहे हैं या जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब निफ्टी 24,800 24,850 हो गई थी, स्टिल ग्लेनमार्क नीचे तो जा रहा था बट इंट्राडे में अच्छी रिकवरी करके ऊपर आ जा रहा था। दैट वाज एन इनहेरेंट स्ट्रेंथ इन दैट ग्लेनमार्क शेयर। सिमिलरली आईआईएफएल, इतना मार्केट गिरा ऑलमोस्ट 24,800 850 के लेवल तक गया, बट स्टिल हमने देखा आईएफएल इज कंटिन्यूअसली इन एन अप ट्रेंड। तो जब निफ्टी चलेगी तो एक पॉसिबिलिटी है कि आईएफएल भी और अच्छे से चलेगा। दैट इज बेसिकली चेकिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कैन वी होल्ड Glenmark share? I cannot answer that because I am not SEBI registered, so I am not allowed to give any advice on hold or sell. Penny stocks में भी सेम सेट फॉलो कर सकते हैं। Yes, you can do it in anything. जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्शंस की भी चार्ट होते हैं। ऑप्शंस में भी आप यूज करो, फ्यूचर में यूज करो, कमोडिटी में यूज करो, क्रिप्टो में यूज करो, कोई भी चीज में यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी टाइम फ्रेम यूज करो। सिर्फ मैं इतना बोलूंगा कि जितना छोटा टाइम फ्रेम पे आप जाओगे उतनी वोलेटिलिटी को आप इनवाइट करोगे। बिकॉज अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, हर 15 मिनट में एक ही कैंडल बनेगी, वो हर 15 मिनट में ऊपर नीचे होता रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे, एक ही कैंडल रहेगी जिसको आपको फॉलो करना है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन ऑन योर नेचर कि आपको किस टाइप का इन्वेस्टर बनना है, किस टाइप का ट्रेडर बनना है। इन HKVC एवरेज ऑफ टाइम पीरियड, इफ बार कैंडल में नीचे गया देन SL विल बी हिट। अबे जैसे मैंने आपको बताया, जो लोएस्ट पॉइंट है, जो वीक होता है, अगर सपोज हम बाय ट्रेड में हैं, देयर इज अ वीक, सो वो नॉर्मल कैंडलस्टिक में भी और HK में भी लोएस्ट पॉइंट वुड बी द सेम, उसमें फर्क नहीं आएगा। एंट्री एंड एग्जिट एज पर HK कैंडल प्राइस केवल सर? नो, एक्चुअली जो एक्चुअल प्राइस रहेगा वो उसी पे हमको एंटर करना पड़ेगा। HK का प्राइस थोड़ा सा वेरी करेगा बिकॉज इट इज एवरेज ऑफ द प्रीवियस वन, तो उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। What position should we take in a sideways market for a longer period? Sideways market में एक्चुअली पोजीशन लेनी नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। और अगर ले भी रहे हो तो क्वांटिटी कम करना चाहिए। फिर जब मार्केट जो ट्रेंड में जाएगा उसके हिसाब से क्वांटिटी आगे बढ़ाना। SL will be as per price of the share and we are marking SL as per HK low. So there can be difference in them. I think I just already explained this. Oil segment sector, मुझे ये क्वेरी समझ में नहीं आया एक्चुअली। Yes. So is there any other question which is remaining? Or if not, then I guess we can wind up this session. And if you like it, I hope that you liked it. And this is a practical thing which I tried to explain. I tried my best. And apologies अगर मेरा कोई क्वेरी अगर छूट गया है तो प्लीज आप वापस से टाइप कर दो। आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन, और मे बी माई नंबर इज ऑल्सो हियर, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम। सिर्फ मार्केट आवर्स में हो सकता है थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स है, बट आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। Thank you, Abhinav sir, for your words. You have surely taught us how to manage charts and how to learn beyond it. With that being said, now let us conclude the session. For this, I would be requesting CA Ketan Sayya sir for the closing remarks. Nothing, no closing remark. I mean, please continue with VOT. I will say thanks to Abhinav. I thought post vote of thanks. So whoever is doing, Purva is doing, whoever is doing, please do vote of thanks. Then I will say thanks. Over to Purva. What an enriching and insightful session it has been. On behalf of the entire organizing committee, it's my absolute honor to deliver this vote of thanks for today's exceptional event. First and foremost, I extend our deepest gratitude to the visionary leaders of WRC. A sincere thank you to CA Ketan Sayya sir for your constant encouragement and support for championing such initiatives to empower the next generation of chartered accountants. A sincere thank you
to CAPU Stand-Up Sir, Vice Chairman of WRC, whose unwavering support has been instrumental in making today's seminar a success. What a... Hello. Yeah, Purva, please carry on. Yes, yes. Sir, I think there was some glitch. No, nothing, No, nothing, Purva. Purva. Please carry on. Okay. Sorry, sir. Yeah. Our heartfelt appreciation also goes to CA Jinal Savla ma'am, Secretary of WRC, and CA Fenil Shah sir, Treasurer of WRC, for their continuous contributions to the student fraternity. A special thank you to all the WRC Regional Council members. Your vision and guidance make these student-centric events truly impactful and purpose-driven. We are immensely thankful to our chairman, CA Jitendra Saglani sir, for your steadfast support and dedication towards student fraternity. Your leadership continues to be a source of inspiration for all of us today. Now turning to the highlight of the day. A heartfelt thank you to you, our esteemed speaker, CA Abhinav Sharma sir, for delivering such an insightful and practical session on the practical application of finding the right stocks. Your deep knowledge of the subject combined with your ability to present complex financial concepts in an easy manner made the session truly valuable for everyone present. Your passion for finance and practical learning resonated strongly with the audience, inspiring the students to go beyond the theory and engage deeply with the world of finance. A big round of applause to all the coordinators and team members who worked diligently behind the scenes to ensure everything ran smoothly. And lastly, to our wonderful audience, thank you for your active participation and curious minds. Events like this become truly insightful because of your involvement. Thank you once again and wishing you all the very best in your journey ahead. May you keep learning, growing, and thriving. Thank you, everyone. Thank you so much, Purva, for a wonderful VOT. And Abhinav, a sincere thank from the entire team of Vikasa and WIRC for your valuable time and sharing your, perfect knowledge on the topic. Thank you so much. I am confident and I know that the students have benefited with this session. Please continue to contribute to the alma mater through this type of platforms, sharing of your knowledge. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. It was a pleasure connecting. Thank you, sir.